Good afternoon, everybody. Respected Dr. Senor, NOCD, and all the medical staff and माइक को थोड़ा मुंह का पास लीजिए, माइक को. हाँ. Today I am going to say something about the biomedical waste management. Everybody, every person who are related to the healthcare workers, they must know about the biomedical waste. What are the biomedical waste? Everybody should know because they are related with our health. They can hazardous to us, our health. So everybody must know about the biomedical waste. So today I am going to some not guidelines, just basic things about the biomedical waste and their management. So what is biomedical waste? It is defined as any solid or liquid waste including its container and any intermediate its product which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animal also. So biomedical waste according to the WHO is defined as solid waste generated during the diagnosis, testing, treatment, research or production of the biological products for human or animals. And WHO estimates that only the 85% of the waste are non-hazardous, only 10% is infectious and 5% are non-infectious, but they consist the hazardous chemicals like the methyl chloride and formaldehyde. तो कौन जनरेट करता है बायोमेडिकल वेस्ट? हम सभी, हमारा ये हेल्थ केयर, हमारा हॉस्पिटल, कोई रिसर्च फैसिलिटीज जहाँ पे रिसर्च वर्क होते हैं या फिर पैथो लैब और डिफरेंट तरह के लैब जहाँ पे सारे हेल्थ केयर होते हैं. Healthcare waste can be characterized by 85% are non-infectious, 10% are infectious, and 5% are hazardous, which I have already told you. Then classification of the hospital waste. These can be non-hazardous, जो कि biodegradable हो सकता है और non-biodegradable होता है, और ये लोग non-infectious होते हैं. दूसरी तरह के होते हैं जो पोटेंशियली इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग स्वाब, लैबोरेटरी वेस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन पेशेंट्स केयर. एंड थर्ड वन इज द पोटेंशियली टॉक्सिक वेस्ट लाइक द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, केमिकल्स एंड एक्सपायर्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग्स. तो ये सभी हमारे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर में आते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है. ये 10 कैटेगरीज होते हैं. कैटेगरी 1 में ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं. कैटेगरी 2 में एनिमल वेस्ट होते हैं. कैटेगरी 3 में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्निकल वेस्ट. एंड कैटेगरी 4 वेस्ट शार्प लाइक नीडल्स, सिरिंज, स्कैलपेल, ब्लेड और ग्लास. कैटेगरी 5 में डिस्कार्टेड मेडिसिन होते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं. कैटेगरी 7 में सॉलिड वेस्ट होते हैं लाइक कैथेटर, आईवी, फ्लूइड सेट होता है, हमारा जो बीटी सेट होता है, ये सभी आते हैं. और कैटेगरी 8 में लिक्विड वेस्ट होते हैं जो कि लैबोरेटरी ब्लड बैंक से आते हैं. कैटेगरी 9 में इंसिनरेटेड एसिड्स होते हैं और कैटेगरी 10 में केमिकल वेस्ट होते हैं. तो हम लोग को ये बहुत ज़्यादा पूरा कैटेगरी से नहीं जानना चाहिए, बट हम लोग को समझना चाहिए कि कौन इन्फेक्शियस है, कौन किस में जाएगा, ये जानना चाहिए. कैटेगरी आपको कि ये कैटेगरी वो कैटेगरी उतना याद करने का आप लोग को जरूरत नहीं है. बस आपको याद करना है कि कौन इन्फेक्शियस है और कौन किस पॉलिथीन में जाता है. तो these waste are collect in different colors of the
container or plastic bags. Here we use the plastic bags, like the yellow plastic bag. हम यहाँ पे यूज करते हैं येलो प्लास्टिक बैग, आप सभी ने देखा होगा अपने वार्ड में। तो हम येलो प्लास्टिक बैग में हम क्या क्या रखते हैं? This one is also infectious. These waste materials are infectious, where we keep the human anatomical and infectious waste, like the human body parts, placenta, human tissues, histopathological specimen, organs, pathology and microbiology waste, surgical waste, cotton, bandage, dressing, swab, mops, solid plasters, and bleeding and other linens which are soiled. So yellow plastic is also a infectious, and every plastic should have there is some symbol of biohazard. यहाँ हम देखते हैं कि येलो प्लास्टिक में इस टाइप का सिंबल बना होता है। दूसरा टाइप का बैग है हमारे यहाँ ब्लू कलर का, जो कि यूज होता है ओनली फॉर प्लास्टिक एंड ग्लास। लेकिन ग्लास हम यूज नहीं करेंगे प्लास्टिक बैग में। ग्लास के लिए हमारे पास डिफरेंट पंचर फ्रूट कंटेनर होता है, जार होता है। तो हम ब्लू प्लास्टिक में रखेंगे डिस्पोजेबल सिरिंज, आईवी सेट, ट्यूब, कैथेटर्स, ड्रेन्स, ब्लड बैग, यूरिन बैग। लेकिन हाँ, ब्लड बैग और यूरिन बैग को डायरेक्ट नहीं, उसको पहले हम लोग को फ्लश करना है, उसके बाद रखना है। ग्लव्स, एप्रॉन, हाँ, ब्लड बैग आप लोग के लिए नहीं, हमारे लिए। एंड व्हाइट कलर का प्लास्टिक, ब्लैक कलर का प्लास्टिक जो होता है विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक। दीदी कुछ कंफ्यूजन है? हाँ, किसको क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पूछिए, अपना अंदर में बात मत करिए। Black plastic will use for the waste food, kitchen materials, and other domestic wastes. And here we have also white puncture fruit container, where we will keep the needles, cut glasses, blades, scalpels, slides, nails, and any other things that can cut or puncture. And this is also the puncture proof container. So there is different colored code for different waste material. Now हम क्यों इससे सोचते हैं कि क्यों हम वेस्ट को हम क्यों ध्यान देना चाहते हैं? क्योंकि इससे बहुत रिस्क होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और कौन लोग रिस्क में आते हैं? तो ये हम सभी, हम लोग। सो द पर्सन हु आर एक्सपोज टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आर हम सभी, मेनली द सैनिटेशन वर्कर्स, हमारा ग्रुप डी स्टाफ, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ जैसे आप लोग, और पेशेंट्स। तो कौन कौन सा हजार्ड्स हो सकता है? देयर इज रिस्क ऑफ द HIV एंड हेपेटाइटिस B infection. There may be nosocomial infections and others. Here we can see in picture, अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट को इस तरह से बाहर फेंक देते हैं तो कोई भी रैट पिकर्स आके उसको उठा के फिर रीयूज कर लेगा। कोई बच्चे आकर के खेलते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, उनको इन्फेक्शन का चांसेस हो सकता है। किसी को डायरेक्ट नीडल से इंजरी हो सकता है, और हमारे जो एनिमल्स होते हैं वे भी जा करके उसमें खेलते हैं, कुछ करते हैं, फिर वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है, बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर सेग्रीगेशन करना है। तो कौन कौन सा रूट्स होता है जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू? हमारे पास
तो ये इनहेलेशन के द्वारा हो सकता है, बाय द डस्ट पार्टिकल्स, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द वेस्ट मटेरियल्स, आइदर विथ इंटैक्ट स्किन और नॉन इंटैक्ट स्किन में भी हो सकता है, या फिर इंजेक्शन से हो सकता है बाय द यूज ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल्स, अनवॉश्ड हैंड, स्टफ्स एंड फूड से, वाटर से भी हमारा इन्फेक्शन जा सकता है। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक? फर्स्ट, the medical and paramedical should be vaccinated against the hepatitis B. Second, by using the heavy duty gloves, especially while dealing with infectious waste. And third, discourage the recapping needles. If unavoidable, single-handed method should be used. तो बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए। तो देयर इज सर्टन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। दीज आर द एयर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट प्रिवेंशन 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1986। ये सारे लेजिस्लेशन जो होते हैं, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये होता है कि प्रॉपर हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट हो, इसलिए। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 have been adopted and notified with the objective to stop the indiscriminate disposal of the hospital waste or biomedical waste and ensure that such waste is handled without any adverse effect on the human health and the environment also. In India, the biomedical waste rule come in force in 12th of July 1998, and it is prescribed by the Ministry of the Environment and Forest, Government of India. And this rule applies to those who not only generates but who collect, receive, store, dispose, treat or handle the biomedical waste in any manner. So this rule applies everybody, from one generator to the collector to the disposer. तो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। Thus, the biomedical waste should be segregated into different containers or bags at the point of generation of the waste. जैसे कि डॉक्टर सेनगुप्ता ने बताया कि हमें अपने वार्ड या फिर यूनिट में सेग्रीगेशन करना है, प्रॉपर सेग्रीगेशन करना है। एंड दिस कलर कोड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट। कहीं पे येलो यूज करते हैं, कहीं पे रेड यूज करते हैं, कहीं पे ब्लू होता है तो कहीं पे व्हाइट होता है। तो हमारे यहाँ ब्लू होता है, रेड जनरली हम यहाँ पे यूज नहीं करते। तो व्हाई द नीड फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? दिस इज बिकॉज टू प्रिवेंट द नोसोकोमियल इन्फेक्शन इन पेशेंट्स from the poor infection control practices and poor waste management. Also to prevent the drugs repacking which have been disposed. To prevent the risk of air, water and soil pollution directly due to the waste or due to the defective incineration, emission and ash. To prevent the risk of the infection outside the hospital for waste handlers and scavengers and other pupils. Again, there is the implementation of the biomedical waste rule. So as previously I have told that the